आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। दिन भर का पूरा एक्शन, पूरी खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। इस साल 9.2% तो अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% ग्रोथ का अनुमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे 2021-22। एग्री सेक्टर और इंडस्ट्रियल भरेंगे इकोनॉमी में जोश। आर्थिक सर्वे में महंगाई भी कंट्रोल में रहने की उम्मीद। 634 अरब डॉलर का है विदेशी मुद्रा भंडार। टाटा स्टील लॉन्ग की हुई नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। 12,000 करोड़ में NINL का 93.7% हिस्सा बेचने को CCEA ने दी मंजूरी। NINL में हिस्सेदार MMTC का शेयर भी 10% भागा। आम बजट से पहले बाजार में रौनक। निफ्टी 237 और सेंसेक्स 813 पॉइंट चढ़ा। छोटे मझोले शेयरों में अच्छी तेजी। IT रियल्टी PSU में खरीदारी। ऑटो नंबर्स से पहले ऑटो शेयर्स भी चमके। प्रधानमंत्री की सभी सांसदों से अपील। चुनाव अपनी जगह, लेकिन बजट सत्र को बनाएं सफल। बजट सत्र अच्छा रहा तो देश का होगा फायदा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कोविड काल में रखा सबका ख्याल। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, ट्रिपल तलाक, काशी और कश्मीर का भी जिक्र। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और यहां से सीधे रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस वक्त सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन इकोनॉमिक सर्वे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं रुख करते हैं। 7. It was a very short document, only 38 pages long, and it was basically a descriptive document. It had some trends of recent trends, but not much by way of analysis, and almost nothing by way of recommendations and so on. So it was a very simple document, but nevertheless that's where it started out. You can see on the left image, one of the earliest ones that we have images for. This is the one from 59-60. Now through the course of the 60s, the document became a lot more substantial. A lot more data, charts, tables, etc. began to be added to it. You also began to have a Hindi translation at that stage in the 60s. And by about the early 70s, this became a more substantial document, about 150 odd pages. So you have on the right an image from 1973. Now through the 70s and 80s, this document took a life of its own. It was by this time being presented as a separate document a day before the budget. So by now it has a character of its own. A lot more tables and charts are added. A statistical appendix is added in the end. And it begins to take on the form that is now much more familiar to what you would think of as an economic survey. I've got the one from 85-86. Many people in this room will perhaps be familiar with that cover and may have studied it when in university. Now, the economic survey of 91-92, as you can imagine, was particularly awaited because that was during the crisis of 91, and you had the reforms and so on. And this is the first time that it appeared in 2 volumes. The first volume was a very thin volume, only about, if I remember, some 30 odd pages, but it was the first time that 2 volumes were published. The second volume was much more traditional sectoral analysis, and in the following years it reverted to being back a single volume. But the document kept growing, and of course, with the advent of computers, the graphics and so on improved very dramatically. So by, as you can see, 2001, 2002, the covers become much more colorful and so on. Then, during the global economic crisis, the document, a few extra thematic chapters were added to it by the then Chief Economic Advisor, Dr. Arvind Vemani, perhaps to explain the predicaments of that time. So you began to see a shift, somewhat of a shift from the purely sectoral approach to adding more themes. And it became a longer document, certainly by 2011-12, that you have on the screen.
It was by this point almost 500 pages long. Now, it then became split into 2 volumes in 2014, but that was a split in 2014 into a text volume, which was mostly done in a sectoral format, and a statistical appendix volume. So there was 2 volumes, but in this format. But in the subsequent years, it ended up with a volume 1 and a volume 2. The first volume tended to have thematic chapters, and the second had the more traditional chapters from the sectoral type chapters. That has now been changed in this economic survey, and this is what it looks like. There is a volume 1, or you can call it the text volume, the economic survey itself. That is the main volume which we just released. But there is a second volume, which is the statistical appendix, and it's been given a character of its own. It's been refreshed. Many old tables have been removed, new tables have been added. For example, new kinds of data like GST, IGST, and so on have been added. There's a whole new section on high frequency indicators as well, in line with some of the thinking that I will now talk about. तो ये आप सुन रहे थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को, जो कि इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है उससे जुड़ी हुई हाइलाइट्स बताते हुए क्या किया है सरकार ने और क्या फोकस रहेगा, किन ग्रोथ एरियाज पर ध्यान रहेगा। और इनफैक्ट आज से जो बजट सत्र की शुरुआत हुई है उसके बाद हमने देखा कि संसद में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश करते हुए इस साल के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2% रहने का अनुमान दिया है। हालांकि FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 8 से 8.5% का दिया है। इसके लिए क्रूड की कीमतें काफी अहम होंगी। अगर क्रूड की कीमतें $75 से नीचे रहती हैं तो अनुमान पूरा हो सकेगा। इसके अलावा सामान्य मॉनसून की भी बड़ी भूमिका रहेगी। सर्वे में महंगाई दर काबू रहने का अनुमान दिया गया है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि बैंकों के एनपीए में सुधार हुआ है और बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त पूंजी है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि जोरदार रेवेन्यू कलेक्शन से सरकार फिस्कल टारगेट के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। और इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल्स और समझने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सबसे पहले तो यही कि इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी का पूरा लेखा जोखा बताता है। जो ग्रोथ की तस्वीर सरकार ने दिखाई है इस सर्वे में, क्या कहना है सरकार का, क्या की हाइलाइट्स है इस सर्वे की? देखिए, वैसे तो काफी मोटी बातें आपने बता ही दी हैं, तो इससे अलग हट के जो बातें वो बता दूं कि ये जो सरकार दावा कर रही है कि अगले कारोबारी साल में 8 से 8.5% का ग्रोथ देंगे, तो उसके पीछे सरकार की दलील है कि दूसरे जो अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर्स हैं वो कोरोना से पहले के लेवल पर जाते हुए दिख रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सरकार को उत्साह देने वाले आंकड़े हैं वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के, जहां पे पिछले साल में -7% का ग्रोथ दिखाता है, निगेटिव में ग्रोथ हुआ था, वो इस साल जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 11% रहने का अनुमान दिख रहा है। ये सरकार को काफी उत्साह दिख रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जहां पिछले साल 3.6% था, इस साल 3.9% रहने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर जो कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि वहां भी अब काफी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और 8.2% का यहाँ पे ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो ये सरकार ने जो ग्रोथ का अनुमान दिया अगले कारोबारी साल का, इसके पीछे दरअसल वजह है कि अलग अलग फंडामेंटल वहां पे मजबूती दिख रही है। और चालू कारोबारी साल में रियल टर्म में 9.2% का जो ग्रोथ का अनुमान दिया है, मोटे तौर पे इससे पहले के जो आंकड़े भी आए हैं कमोबेश इसी ग्रोथ के आंकड़ों को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आर्थिक सर्वे भी ये बात को मान रहा है कि अब अर्थव्यवस्था की रफ्तार कोरोना से पहले के स्तर यानी प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंचती हुई दिख रही है। शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी हुई हाइलाइट्स आज की। और इनफैक्ट आज जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। वहीं बजट सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो ये आपने सुना पीएम मोदी का संबोधन जो उन्होंने मीडिया को से किया और अपील यही की कि बजट सत्र चलने दिया जाए और आप अपनी बात खुलकर कीजिए। लेकिन इसके अलावा आज FY23 आम बजट से पहले अगर आप मार्केट का हाल देखेंगे तो मार्केट में एक शानदार रौनक रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स, फिर चाहे वो आईटी हो, रियल्टी हो या फिर पीएसयू बैंक हो, वहां पर एक अच्छी खरीदारी का मोमेंटम दिखा। फार्मा, मीडिया, एनर्जी इंडेक्स में बढ़त के साथ बंद हुए आज के सेशन में। अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी 237 अंक और सेंसेक्स 813 अंक बढ़कर बंद हुए। तो ये आज का हाईलाइट था और इनफैक्ट आज छोटे मझोले स्टॉक्स हों या फिर दिग्गज शेयर्स हों, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। सुमित हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि ऑटोज में काफी अच्छी हमने रौनक देखी। कल का दिन ऑटोज के हिसाब से एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि कल बजट डे है तो काफी वॉलेटिलिटी और उथल पुथल के लिए सभी तैयार भी हैं, लेकिन ऑटोज स्पेशली इसलिए फोकस में रहेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स के नंबर्स भी आए हैं और साथ ही साथ बजट अनाउंसमेंट का तो इम्पैक्ट होगा ही और सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो सेल्स के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। लेकिन हाँ, ये पूरी पॉकेट एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रही थी। तो बजट रिलेटेड तो एक्शन कल होगा, लेकिन उससे पहले अगर आज की हाईलाइट्स क्या रही, किन सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा फोकस था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट आप देखिए थोड़ी वॉलेटिलिटी तो आज भी देखने को मिली, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही आकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जहां पर मिड कैप्स हो या फिर लार्ज कैप्स हो। आप मिड कैप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, 1.5% की बढ़त देखने को मिली। 30,274 पर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्विकली पहले तो की हाईलाइट्स आज की। देखिए, ये बजट से पहले है, पिछले 10 साल की सबसे बड़ी तेजी आज आपने देखी है, करीब करीब 2% के आसपास की। इतनी बड़ी तेजी हाल फिलहाल में तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिली। 2012 में इस तरह की तेजी आई थी, लेकिन एक बढ़िया तेजी मार्केट्स में बनी। मिड कैप, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। निफ्टी बैंक तेजी के अंदर कामकाज कर रहे थे। आईटी में खरीदारी, फार्मा में खरीदारी, एनर्जी शेयरों में जोरदार तेजी। तो अलग अलग सेक्टर, पॉकेट, सब सेक्टर्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप आधा से 1% के आसपास चले। थोड़ा ऊपरी से ईज आउट जरूर हुआ मार्केट, लेकिन हाँ फिर भी एक वेल पोजिशन मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ा और शॉर्ट कवरिंग जो थी वो मार्केट में सिलेक्टिव स्टॉक्स को बढ़िया तेजी भी दिलवा रही थी। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर और पूरी तरह से मार्केट्स ने आज जो ट्रिगर्स थे, जिनके अच्छे नंबर्स थे या जिनके खराब नंबर्स थे, अकॉर्डिंगली वहां पे एक स्ट्रांग रिएक्शन देता हुआ दिखाई भी पड़ा। और अगर स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां दिखे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज अलग अलग सेक्टर्स के या फिर अलग अलग स्टॉक्स जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे इन टॉप गेनर्स की सूची के अंदर। चाहे आप ऑयल एंड गैस में जाएं, आईटी के अंदर जाएं, बैंक्स के अंदर जाएं, सब तरह के शेयर जो हैं वो आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स के अंदर। टेक महिंद्रा आईटी से 5% की तेजी, टाटा मोटर्स नंबर से पहले 5% करीब चला, बीपीसीएल 4% की तेजी और विप्रो में करीब 4% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा बहुत बैकफुट पर आया आज बैंक्स, जिसमें इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे, यूपीएल नंबर्स के बाद 2.5% नीचे, कोल इंडिया 1.25% नीचे और एचयूएल फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। माइंडट्री मिड कैप का टॉप गेनर बना, केनरा बैंक 6% की तेजी में रहा, गोदरेज प्रॉपर्टी में 5% का उछाल और नंबर्स के बाद यूनाइटेड ब्रूवरीज करीब 5% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में बैंक ऑफ इंडिया 2% टूटा, वोडाफोन आइडिया 1.5% की बिकवाली, एक्साइड और श्रीराम ट्रांसपोर्ट करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर भी आज लीड करता दिखाई पड़ा इन्फो एज, नंबर्स के बाद रिएक्शन और करीब 11 साढ़े 11% का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रादर। बिरला सॉफ्ट डिहाई के आसपास बंद हुआ, 7% की तेजी, माइंड ट्री 8% चढ़ा और एल&टी करीब 1900 के लेवल्स पे होता दिखाई पड़ा। इनफैक्ट इस पूरे ग्रुप की कंपनियों में खरीदारी थी। एफ&ओ में गिरने वालों में इंडसइंड बैंक का नाम शुमार रहा, 3.5% नीचे, अतुल लिमिटेड 3% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 2% नीचे और वेदांता करीब 2% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो थोड़ा प्रेशर इनमें रहा। बैंकिंग में आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% ऊपर, एसबीआई 3% ऊपर, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक करीब 2% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और आईटी में आज माइंडट्री 8% ऊपर, एल&टी इन्फोटेक की बात हो रही है वो, टेक महिंद्रा और विप्रो जहां पर करीब 4 से लेकर 5% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक मूड माहौल बेहतर, लेकिन अब बड़ा इवेंट अवेटेड है तो बाजार भी बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दे सकता है इधर साइड पर। ध्यान संभल के ट्रेड करना होगा। बिल्कुल, कल तो ध्यान रखना ही होगा। बजट डे है, डी डे है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि बजट से ठीक पहले मूड माहौल मार्केट का थोड़ा सुधरता हुआ दिखा है। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब यहां से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। और यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए
बीजेपी की क्या तैयारी है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले माफ कीजिए बजट से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको दे देते हैं। बजट एक्सक्लूसिव लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस बार के बजट में मनरेगा की तर्ज पर जो शहरी इलाके हैं उनके लिए रोजगार स्कीम का ऐलान हो सकता है। सरकार का फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेहतर और ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराने पर होगा। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और डिटेल्स ले लेते हैं। आलोक, क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल, देखिए अर्बन पुअर पर फोकस करते हुए सरकार इस बार बजट में एक नई स्कीम का ऐलान कर सकते हैं। इसमें जो खास तौर से जो राहत पहुंचाने का लक्ष्य होगा उसमें जो असंगठित क्षेत्र के कामगार, मजदूर, गरीब हैं वो होंगे और इनको खास तौर से निश्चित और गारंटीड रोजगार मुहैया कराने के मकसद से इस स्कीम के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसे सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाएंगे और उनको आर्थिक मदद देने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पिछले 2 साल से महामारी के दौरान अगर देखें तो ग्रामीण इलाकों में मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी स्कीम के जरिए जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो काफी हद तक प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा जब बहुत सारे लोग यहां से पलायन कर गए और जब लौट के भी आए तो उनको सही तरीके से कामकाज नहीं मिला। लिहाजा इन लोगों पर फोकस करते हुए सरकार ये स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसमें खासतौर से देखें तो पिछले साल से सरकार की तैयारी चल रही है। ई श्रम पोर्टल के जरिए बहुत सारे ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनका आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस डेटाबेस के जरिए ही लोगों तक सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचा जाएगा और उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और चुनावी साल भी है, बजट के तत्काल बाद 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन भी है, तो सरकार का फोकस खास तौर से इन सेक्टर पर रहने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो बजट एक ऐसी चीज है जिससे सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद होती है आम आदमी को। टैक्स से लेकर निवेश तक क्या है वित्त मंत्री से आम आदमी की आस। देखिए हमारा खास शो बजट उम्मीदें आम आदमी 5:27 पर आज। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। और यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली चुनावी रैली के जरिए लोगों से जुड़े। पीएम ने इस कार्यक्रम के जरिए यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब यूपी दंगे की आग में जल रहा था तब सपा सरकार उत्सव मनाती थी। 5 साल में योगी सरकार ने अब यूपी को इन हालातों से बाहर निकाला है। मतदाता का भी 5 साल पहले मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता था। हम एकजुट रहेंगे। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।